Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's class. Walaikum salam, sir. Hope you people are fine and doing well. Yesterday we talked a bit about the heavy metal tolerance and detoxification mechanisms. Brief overview. And the central idea of the talk was the glutathione. We talked about its senses, its brief overview regarding its chemical composition. Today we will move further and we will see how glutathione plays a central role in conferring tolerance to heavy metals, whose specific effects we have discussed earlier. We have established that heavy metals may cause inhibition of the photosynthesis. They interfere with nutrient uptake, membrane metabolisms, as well as the generalized effect was the generation of the oxidative stress as a cross stress response. So, our recent intervention in yesterday lecture was glutathione exists in two forms, reduced as well as oxidized, and their ratio depends on the intracellular level. So, today we will move further and we'll start our discussion. The basic enzyme, that is the T regulatory enzyme, that is GSH1, that is the regulatory enzyme in the glutathione biosynthesis. Moreover, numerous studies have documented an intimate crosstalk. When there will be world crosstalk, it means that one phytohormone, one pathway is affecting or influencing another one. There is a link. So studies have documented that there is an intimate, close relation between ascorbic acid and alpha tocopherol with glutathione biosynthesis. By the way, what is ascorbic acid? What is ascorbic acid? It is a non-enzymatic antioxidant. Likewise, alpha tocopherol that is mentioned here, that is also non-enzymatic antioxidant. So the specific topic that we will talk today, that is mechanism of glutathione mediated heavy metal stress tolerance in plant. How glutathione is involved in the detoxification mechanisms. How? One thing, glutathione ascorbate pathway that cause removal of hydrogen peroxide, reactive oxygen species. Moreover, we will also talk about that glutathione will give rise to senses of chelating agents, metal chelators that will bind, and then they will deposit the metal binded form into vacuoles. So we will be seeing those. So first thing, that is glutathione has been detected which virtually in all cell compartments, all cell organelles: cytosol, chloroplast, endoplasmic reticulum, vacuole, and mitochondria. When I am naming these compartments or cell organelles, I hope you are well versed with their functions. What is cytosol? What is chloroplast? What is endoplasmic reticulum, vacuole, and mitochondria? The most familiar thing will be mitochondria. You will know powerhouse of the cell. And what about the others? Vacuole, cellular dustbin, cellular storage compartment, cellular store. Then what is endoplasmic reticulum? Anyone? Anyone from the class? What is endoplasmic reticulum? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। फिर मुझे आपकी नहीं आ रही, और मुझे आपकी इसलिए नहीं आ रही कि आप में से कोई बोल सर नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स लगे होते हैं और ये सर और फंक्शन क्या है इसका? और सर इसके ये एसेंशियल क्यों है? अच्छा, एक चीज जो है
आल्दो कि ये डायरेक्ट हमारी इस कोर्स का या किसी भी कोर्स का इस स्टेज पे हिस्सा नहीं, जो टेज एंड जीगर की प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें प्लांट सेल्स का एक चैप्टर है, खुदा रहा उसको एक दफ़ा जब कभी आपको टाइम मिले, को फुर्सत मिले, घंटा 1.5 घंटा निकाल के उसको आप देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें वन वे और द अदर हमारे कोर्सेज में कभी ना कभी आपको टाकरा होगा इनके साथ, तो इनको आप देखो। ठीक है, उस चैप्टर सर को कौन सी भी। बुक, टेज? एंड जीगर की प्लांट फिजियोलॉजी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें प्लांट सेल्स का स्पेशल चैप्टर है। ठीक है, जिसे ठीक आपको गो थ्रू हो सकते हैं। अगर वो आपको डिफिकल्ट लगती है तो पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका पीडीएफ मैंने एक निकाल के रखा हुआ है सिर्फ सेल्स के हवाले से। तो लेकिन जो टेज एंड जीकर वाला चैप्टर होगा वो एक्सक्लूसिवली, क्योंकि बुक का नाम जो है प्लांट फिजियोलॉजी है, तो वो प्लांट सेल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन उसमें होगी। तो मैं आपको जो चैप्टर 3 चैप्टर मैं आज आपको भेजूंगा, जिसको जहाँ से पढ़ना है, कभी जिंदगी में मौका मिले वहां से एक दफा पढ़ लाजमी। तो ग्लूटाथियान जो है उसकी आप कह लो कि लोकलाइजेशन जो है दैट इज साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया जो हो सकता है। और जो ग्लूटाथियान है बजाते खुद इट रिप्रेजेंट मेजर सोर्स ऑफ नॉन प्रोटीन थायोल्स। अब थायोल क्या चीज होती है? थायोल, थायोल ग्रुप होता है। सर, ऑल ग्रुप तो अल्कोहल्स के लिए नहीं है? हम्म, लेकिन इसमें जो है सल्फर जो है, ठीक है, वो, ठीक है, तो आर्गेनो सल्फर जो चीज़ें होंगी, ठीक है, उनके साथ जो है वहाँ पे आर और एस और एच जो इसका टिपिकल वो है, उसमें आर जो है वो बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, और एस एच जो है वो उसको हम थायोल ग्रुप जो है वो कहते हैं, यानी कि सल्फोहाइड्रल ग्रुप, यानी कि सल्फर और हाइड्रोजन जो है वो आ सकती हैं इस स्टेज पे। वी आर मोर कंसर्न विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थायल ग्रुप को इतना समझ सकते हैं। ठीक है, कि इसमें अल्काइल ग्रुप है एक, आर से डिनोट होगा, और उसके बाद जो एस एच है उसमें वो सल्फोहाइड्रल ग्रुप जो है वो आएगा इसके अंदर। यूजली जैसे फैसल ने अभी कहा कि थायोल ग्रुप तो अल्कोहल के लिए, तो इनकी बात सही है, लेकिन जो थायोल हैं ये बेसिकली एनालॉग हैं सल्फर के, सल्फर एनालॉग हैं अल्कोहल के। ठीक है, ये इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। यानी कि इन अदर वर्ड्स जो डिटेल मैंने देखी थी कि वहाँ पे जो आप कह लें कि उसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको सल्फर रिप्लेस कर लेता है वहाँ। ठीक है, तो थायोल ग्रुप का इतना आइडिया जो है वो आपको इस स्टेज पे एनफ है, ऑल्दो कि वी आर नॉट डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद केमिस्ट्री, लेकिन चूंकि हैवी मेटल्स जो हैं वो केमिकल एलिमेंटल फॉर्म में है, तो केमिस्ट्री वन वे और अगर हमारे पास आती रहेगी। तो उसमें जो केमिकल रिएक्टिविटी है इसकी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें अल्काइल ग्रुप है, उसके बाद सल्फाइडल ग्रुप है, ठीक है, और बेसिकली ये सल्फर एनालॉग हैं अल्कोहल्स की। तो इसकी जो ये केमिकल रिएक्टिविटी है ये मेक इट पार्टिकुलर सूटेबल टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ बायोकेमिकल फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें हमने जो चीज़ें पिन पॉइंट की हैं आज के, ग्लूटाथियान जो है पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेवल ऑफ प्लांट सेल। ग्लूटाथियान एस्कॉर्बिट साइकिल, उसकी कल मैंने आपको जो साइकिल का फ्लो था उस पर बात करेंगे। तो उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, उसके रिमूवल में जो की रोल ये प्ले जो है वो करता है। और जो रेशो है इट्स रिड्यूस, जिसको मैंने कल भी कहा था कि जीएसएच और जो ऑक्सीडाइज है जीएसएसजी, ठीक है, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा रिडॉक्स सिग्नलिंग पाथवेज में। और ओवरऑल अगर इनकी रेशियो जो है वो चेंज होती है तो वो आइदर आल्सो सर्व एज अ सिग्नलिंग, कि वो सिग्नलिंग के तौर पे भी यूटिलाइज जो है वो होगी। तो जो बेसिकली ऑक्सीडाइज रिड्यूस और ओवर ऑक्सीडाइज जो रेशियो है ग्लूटाथियान की, वो इंडिकेटर है सेलुलर रिडॉक्स बैलेंस का।
और वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उनकी परसेप्शन और सिग्नलिंग जो है, यानी कि उनकी रिकग्निशन में और उनकी जो फर्दर सिग्नलिंग है उसमें वो इन्वॉल्व जो है वो हो सकते हैं। जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है दैट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और डायरेक्टली जो रिडक्शन है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको मॉड्यूलेट करने में, उसको मिनिमाइज करने में, उसको एलिविएट करने में इसका रोल जो है वो आएगा, जिसको हम अभी कुछ देर तक हम एक्सप्लोर करेंगे। एक जो वर्ड होता है वो है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन। जब वर्ड कॉन्जुगेशन आता है आपके ज़हन में क्या इसका कंसेप्ट आता है? व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेशन? सर इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इकट्ठे होंगे या कार्बोहाइड्रेट लिपिड इकट्ठे होंगे? सर दो को मिलाने वाला। ओलिगोप्रोटीन, इस तरह के कोई वर्ड हम पढ़ के आए हैं ना। यस सर। तो कंबाइंड फॉर्म जो है वो आ जाएगी। तो कॉन्जुगेशन जो है ग्लूटाथियोन की बेसिकली विद अदर मॉलिक्यूल्स, उसको जो चीज गवर्न करती है, जो रेगुलेट करती है, वो बेसिकली एक एंजाइम है दैट इज ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट्स जो ये बनाएगा, जिनके साथ ये बाइंड करेगा, ठीक है, तो उनको अल्टीमेटली फिर वो सब्सिक्वेंटली जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा वैक्यूल में, ताकि सेल जो है वो उनके इल इफेक्ट से जो है वो बच सकें। तो जितनी भी हमारी डिस्कशन है, चाहे वो ड्राउट की, वेदर इट वाज सलिनिटी, a cross stress was there called oxidative stress, और उसमें जो एक्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, उनमें जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वो OH माइनस जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं वो, तो इल इफेक्ट जो हैं वो काज करते हैं और बड़े रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह ये है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को अगर हम ड्राउट वाला अपना रिकॉल करें मटेरियल, हमने कहा था रिड्यूस कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन थैलाकाइड, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद एक्साइटेड पिगमेंट जो है थैलाकाइड में, वो रिड्यूस कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो फिर जब प्लांट इन रिस्पांस टू अब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग अपने स्टोमेटा क्लोज करता है ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज करे, तो CO2 अंदर नहीं जाती, दिस स्पेयर्स मोर इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये 3-4 चीजें थी। उसके अलावा जब फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो तब ये आपका जो ड्राउट वाली बातें हैं, ये वहाँ पे आपको ये 4 चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी कि ये कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को अगर इफेक्टिवली स्क्वेंज ना किया जाए या टारगेट ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, तो सेल में 3 चीजें जो बड़ी क्रिटिकल हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA, उनको नुकसान पहुंचेगा। जब इनको नुकसान पहुंचेगा, तो एक स्टेटमेंट जो इसके साथ हम थ्रू आउट द कोर्स हम आ रहे हैं वो है कि सेल इज द बेसिक फंक्शन, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ना स्ट्रक्चर रहेगा ना फिर फंक्शनैलिटी रहेगी। तो इनको प्लांट ने टैकल करना है, और जहाँ तक हमारा प्रीवियस नॉलेज जहाँ तक हम पहुँचे थे कि उसके लिए एंटीऑक्सीडेटिव डिफेंस सिस्टम प्लांट जो है वो इम्प्लाई करता है, जो मुश्तमिल होता है नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स पे। तो कल की बात अगेन कि जो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, मैंने आपको कहा था। तो ऑक्सीडेशन जो है, जब आप कह लो कि उसमें होगी प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, तो वो अनडिजायरेबल है। ठीक है, तो एडिशनली ग्लूटाथियोन जो है इसके इन रोल्स के अलावा इट इज इनडायरेक्टली, जहाँ तो ये डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा था, इनडायरेक्टली जो है ये आप कह लो कि ग्लूटा रिडक्शन जो है मेडिएटेड रिडॉक्स कंट्रोल ऑफ मेनी सेलुलर प्रोटीन्स जो है, उनकी आप कह लो कि एक्सप्रेशन प्लस उनकी जो फंक्शनैलिटी है, वो सारी चीज़ें। जो प्रोटेक्टिव रोल है ग्लूटाथियोन का प्लांट, स्पेशली विद रेफरेंस टू हैवी मेटल स्ट्रेस, वो है कि
क्वेंचिंग या सिक्वेस्ट्रेशन या स्क्वेंजिंग ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट रोल है, पहला है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है उनको स्पेशली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्रिटिकली स्पेसिफिकली उसको स्क्वेंच करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में मददगार है। सेकेंडली जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर का वर्ड अगेन आया, प्रिकर्सर है कि किसी केमिकल कंपाउंड की अर्ली फॉर्म जो है, ठीक है। तो प्रिकर्सर फॉर द सेंसेस ऑफ फाइटोचिलेटेंस, फाइटोचिलेटेंस वो होंगे जो चिलेशन काज करेंगे अनडिजायरेबल हैवी मेटल्स की, उसको बाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइटोचिलेटेंस आर बेसिकली सेट ऑफ नॉवल हैवी मेटल बाइंडिंग पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड क्या चीज़ है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स वगैरह जो पढ़ी कार्बन हैं तो वहाँ, नाइट्रोजन के दरमियान, हाँ जी, तो उसमें जो है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है हम्म, पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, ये प्रोटीन के अंदर होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। हाँ जी। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये बेसिकली पेप्टाइड्स हैं जो हैवी मेटल को बाइंड जो है करने की इनमें सलाहियत है। तो फाइटोचिलेटेंस जो हैं वो इंड्यूस होते हैं रिस्पांस टू एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स, जिनमें कैडमियम हो सकती है, मरकरी, कॉपर, जिंक। तो इन ये इंड्यूसेबल है इन रिस्पांस टू एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स। तो उसमें जो है जब प्लांट एक्सपोज हो रहा होगा इन हैवी मेटल्स से, उसको एक्सपोजर होगा, तो वहाँ फाइटोचिलेटेंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, दे विल बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटाथियोन बाय जो एंजाइम है जिसका नाम है फाइटोचिलेटिन सिंथेज। यानी कि जब प्लांट जो है वो हैवी मेटल से एक्सपोज होगा, तो एक तो हैवी मेटल बजाते खुद वहाँ पे मौजूद होंगी, दूसरा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज करेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्पेशली जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके रिमूवल में ग्लूटाथियोन डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। सेकेंडली जो ग्लूटाथियोन है ये फाइटोचिलेटेंस जो हैं उनके सेंसेस में मददगार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर एक है, उसको हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर होंगी। तो इंक्रीज जो है ग्लूटाथियोन बायोसेंसेस में, ठीक है, वो कैडमियम और निकल की जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल, और नंबर स्टडीज जो है इस पे अवेलेबल है। यानी कि उन्होंने कैडमियम और निकल जो है उसके खिलाफ जो मुदाफ़त या टॉलरेंस जो है वो कॉन्फर की प्लांट को, ठीक है। तो उसके रेफरेंसेस यहाँ पे आपको जो है वो अवेलेबल आएंगे। अच्छा जी, एक चीज़ जो हमने एक्सेप्शन हमने देखनी है कि कोई भी चीज़ जो है वो सिल्वर बुलेट नहीं होती हर चीज़। तो एलिवेशन ऑफ जो है रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन, इट डज नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद इनहांस टॉलरेंस ऑफ हैवी मेटल्स। ये नहीं कि हर दफ़ा अगर ग्लूटाथियोन रिड्यूस ग्लूटाथियोन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा कोरिलेट करेगी हैवी मेटल टॉलरेंस की, ठीक है। ग्लूटाथियोन अलोन जो है वो sufficient नहीं है to support all the complex mechanisms of resistance to heavy metal induced stress। तो अब जो मुद्दा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसमें तीन कलर हैं। टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू हैवी मेटल कुड बी इन थ्री वेज, तीन पॉसिबल वेज हैं जिनके तहत पौधे जो हैं वो हैवी मेटल जो है उसका स्ट्रेस जो है उसको वो बेयर करेंगे, ठीक है। पहला है थ्रू चिलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड बाउंडिंग द हैवी मेटल टू वेरियस थायोल कंपाउंड्स इन द साइटोसोल, और फिर उनकी आप कह लो कंपार्टमेंटेशन या उसकी सिक्वेस्ट्रेशन इनटू वैक्यूल्स, ठीक। या पंपिंग ऑफ हैवी मेटल्स एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आउट, यानी कि उनको बाहर निकाले, खारिज करे अगर वो आ भी नहीं तो। और थर्डली जो है कि अदर एंटीऑक्सीडेंट एंड रिपेयर मैकेनिज्म में आल्सो पार्टिसिपेट इन टॉलरेंस प्रोसेस, जो बाकी इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, एस्कारपेट वगैरह जो है, परऑक्सीडेज, बहुत सारी चीज़ें। तो जो सेंसेस है प्लस उसको आप कह लो कि जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, फाइटोचिलेटर्स जो हैं वो इन रिस्पांस टू लेड एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइटोचिलेटर, और जो लेड कम्प्लेक्स है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर के अंदर। तो उसमें जो ट्रांसलोकेशन है फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स जो हैं
वो आइडेंटिफाई की गई है यूजिंग जाइलम एंड फ्लोएम सैप फ्रॉम ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस क्या चीज़ है? रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है इनकी अम्ब्रेला में फॉल करेगी। क्या चीज़ है ब्रासिका नेपस? तो ये आई थिंक सरसों का पौधा। वो तो ब्रासिका कंपेस्टस है। गोभी सरसों नहीं, जो ये सरसों है वो ब्रास है तो सारी सरसों, लेकिन वो जो है वो टिपिकली वो ब्रासिका कंपेस्टस जो है वो होगी। अच्छा, किनोला क्या चीज़ है? किनोला, कैनेडियन ऑयल क्या कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड्स। वो एसिड्स कौन से हैं? इरूसिक एसिड, ग्लूकोसाइनोलेट्स। इन चीज़ों को रिविजिट किए रखा करो। अच्छा जी, हाई लेवल जो है किसका? फाइटोचिलेटेंस और जो आपके कैडमियम है द फ्लोएम्स है कंपेयर टू जाइलम सैप, यानी कि फाइटोचिलेटेंट एजेंट्स जो हैं वो प्लस कैडमियम का हाई लेवल फ्लोइम में, दोनों कंडक्टिंग वेसल्स हैं, फ्लोइम और जाइलम। जाइलम जो है वो बेसिकली जो पानी और नमकियात हैं उनको पौधे की टाप तक लेके जाती है और वहाँ से वापसी जो खुराक है वो फ्लोएम के जरिए। तो दैट्स गेस दैट की ट्रांसलोकेशन जो है वो प्रेफरेबली जो है वो फ्लोइम होगी। जो हाई रेशियोज हैं फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स की ओब्लिक जो है कैडमियम की, ठीक है, और जो ग्लूटाथियान है या उसकी कैडमियम से, ठीक है, वो थ्रू फ्लोइंग वो सजेस्ट करती है कि फाइटोचिलेटर एजेंट्स जो हैं ग्लूटाथियान जो है कैन फंक्शन एज अ लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर फॉर कैडमियम, कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कैडमियम की मूवमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व जो है वो। तो काफ़ी खुश सी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ जो है इस फिगर को मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बढ़ाता हूँ, तो इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारी तकरीबन जितनी हमारी आज की बातें हैं, बल्कि इस पिक्चर की उसमें जाने से पहले भी वो उसमें हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अब तक की हमने कल की जो बातें थी हमारी, हमने ग्लूटाथियान की बात की थी। ग्लूटाथियान जो है हैवी मेटल जो है उनकी टॉलरेंस के अंदर जो है इन्वॉल्व है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं उनको सिक्वेंस करने में, प्लस जो हैवी मेटल्स के आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाइंड करके आइदर इसके साथ या फिर जो फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये उनको सिक्वेस्टर करता है वैक्यूल, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसको ये बचाता है। दूसरा एक एसेंशियल साइकिल जो प्लांट के अंदर ऑपरेट करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो ग्लूटाथियन एस्कॉर्बिट साइकिल है। वो जो एक रिव्यू मैंने कल शेयर किया था वाहिद एटेल का, उसमें उसको लिखा होगा हालिनल असादा पाथवे। तो अच्छे, ये बहुत हाईली साइडेड रिव्यू है लेकिन टाइपो इसमें भी है, ये बेसिकली हालीवल है, हालिनल नहीं है। नेट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, HALLINEL है ना, ये हालीवल एंड असादा पाथवे है बेसिकली। तो इसको आप कंफर्म वहाँ पे कर सकते हैं। अब इस फिगर में जो अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे ऊपर आपको हैवी मेटल का स्ट्रेस है, ठीक है। तो बेसिकली दिस फिगर इज अबाउट द ग्लूटाथियन मेडिएटेड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हैवी मेटल स्ट्रेस इन प्लांट्स। तो एक चीज जिस पे हमारा कंसेंसस हुआ था वो ये है कि जब प्लांट्स एक्सपोज होंगे हैवी मेटल से, इट विल कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड जनरेशन ऑफ हैवी मेटल आयंस, जिसको यहाँ पे M+ से जाहिर किया गया है। ROS is for reactive oxygen species and M+ is for heavy metals ions। वो heavy metals कौन कौन सी हैं? हमने लंबी चौड़ी टेल उसमें पढ़ी है, निकल है, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, जिंक है, आयरन है, ठीक है। उसके बाद आपके मैंगनीज वगैरह, लेड वगैरह, कॉपर, जिंक, लंबी चौड़ी तो वो मेटल आयन यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको एक्सपोजर ऑफ प्लांट जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और अकामुलेटेड हैवी मेटल्स। अब ग्लूटाथियन जो है वो डिटॉक्सिफाई करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थ्रू एस्कॉर्बिट ग्लूटाथियन साइकिल, या इसको ग्लूटाथियन एस्कॉर्बिट जो है लिटरेचर में दोनों, जिस तरह राइस वीट या वीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम मिल जाता है लफ्ज, तो ये लफ्ज आगे पीछे हैं, सिर्फ बाकी फिलासफी वही रहेगी। सेकेंडली जो ग्लूटाथियन एस ट्रांसफरेज है जिसका जिक्र हम कहाँ पे करके आए हैं अभी,
ठीक है, ये कि ग्लूटाथियान की जो कॉन्जुगेशन है विद अदर मॉलिक्यूल्स या मेटल आयंस जो है वो किसके थ्रू होगी, वो ग्लूटाथियान एस ट्रांसफरेज के थ्रू। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जो है ग्लूटाथियान एस ट्रांसफरेज कैटलाइज द कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ग्लूटाथियान का विद मेटल आयन, और उसको फिर वो हेल्पफुल होगा कि उनको स्क्वेस्टर किया जाए इनटू वैक्यूल। वैक्यूल इज बेसिकली सेलुलर डस्टबिन, सेलुलर गार्बेज, जहाँ पे अनडिजायरेबल एलिमेंट्स या मेटल आयन जो है उनको वो स्क्वेस्टर करेगा, ताकि प्रेफरेबली जो साइटोप्लाज्म जहाँ पे लाइफ रिलेटेड प्रोसेस जारी हैं, जहाँ पे ऑर्गेनेलिस या उज़विये जो मौजूद हैं जो अपनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बचाया जाए। ये सिमिलर फिलॉसफी है जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे सलिनिटी में, जिसको आप कंपार्टमेंटेशन कह रहे थे कि साल्ट जो है खासकर हार्मफुल आयंस जो है उनको वैक्यूल के अंदर जो है वो किया जा रहा था। प्रेफरेंशियली सेलुलर लेवल पे प्रेफरेंशियल उनकी एलोकेशन थी वैक्यूल में एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म में, और आर्गन लेवल पे मोर इन शूट एज कम्पेयर टू मोर इन रूट एज कम्पेयर टू शूट थी। तो जो थर्ड मैकेनिज्म है ग्लूटाथियान का, ठीक है, वो है कि ये यूज होगा फॉर द सेंसेस ऑफ फाइटोचिलेटिंग सब्सटेंसेस, जिसको कैटलाइज करेगा फाइटोचिलेटिंग सिंथेस एंजाइम। ठीक है, और वो फिर जो फाइटोचिलेटिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे मेटल आयन के साथ साइटोसोल में, और उनको फिर वो वहाँ पे लेके जाएंगे वैक्यूल में। अब बेसिकली ग्लूटाथियान जो है वो रेक्टिवॉक्सिन स्पीशीज को स्पेंड करने में हेल्पफुल है। ग्लूटाथियान जो है आप कह लो कि वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है मेटल बाइंडिंग करने के बाद, और उनको वैक्यूल में करता है, या फिर ग्लूटाथियान जो है वो फाइटोचिलेटेंस जो है कंपाउंड जो है उनको पैदा करने में हेल्पफुल होता है, और वो फिर फाइटोचिलेटिंग एजेंट्स जो है वो मेटल के साथ बाइंड होकर दोबारा उनको फिर वैक्यूल में लेके जाती हैं। ये तीन मैकेनिज्म जो है प्राइमरीली जो है वो रहेंगे। तो अब यहाँ तक आज की डिस्कशन में मैं यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हाल दो हमारे पास टाइम है 20 मिनट का, तो उसमें कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है या उस पर रिट्रेट होना चाहिए या उसको दोबारा एक्सप्लेन होना चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो। जी, फैसल, फैसल, कलीम सांगी, हसन सईद। सर 1 मिनट। सर जी मेरा क्वेश्चन है सर जी। जी सर जी जैसे ये लिपिड्स वगैरह फैट्स होते हैं वो इंसानों में ये मोटापे वगैरह का काज बनते हैं, तो सर जी ये पौधों में भी ये कोई डिजीज वगैरह का काज बनते हैं? नहीं, पौधे जो हैं कोई नहीं फैटी बनते। फैटी डाइट जो है वो पौधा कहाँ से ले रहे हैं? पौधों की डाइट में फैट्स जो है वो हम तो आर्टिफिशियली इनटेक ले रहे हैं ना, प्लांट जो है उसने अपनी जरूरत के सेंसिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो उसकी आप कह लो कि जो मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है उसमें एसेंशियली वो लिपिड मौजूद हैं। और दूसरा हम पढ़ के आए हैं कि जो टॉलरेंस है खासकर टेम्परेचर वाली, चाहे वो हाई की है चाहे वो लो की है, वो मेम्ब्रेन जो है उसमें ही उसकी कह लो कि मैकेनिज्म इनहेरेंट है। हाँ, चंद एक प्लांट्स हैं जो प्रेफरेबली जिनको हम कहते हैं ऑयल सीड है, ठीक है, तो उनमें जो ऑयल कंटेंट है वेट बेसिस पे वो सीड में ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। तो आपने ऐसा तो नहीं देखा कि कोई ऑयल सीड पौधा प्लांट हो और वो बाकी पौधों के मुकाबले में ज्यादा मोटा ताजा हो? तो ये जो है ओबेसिटी वाला मामला यहाँ पे नहीं है। जी और सर जी और जैसे ये लेड वगैरह जिंक ये अक्सर इनकी मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन सर जी ये नुकसानदेह होते हैं, तो पौधों वगैरह में भी इनका कोई होता है डिसीज? के बंदे, इसी चीज पे तो हम सारा इतना कुछ वो जो रिव्यू था लास्ट, उसमें सारी इन्हीं का तो फैक्ट देखे हैं कि हर वो चीज मैंने आपको कहा था कि जब भी हम हैवी मेटल की बात करेंगे तो पॉइजन लाइज इन डोज के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लो कंसंट्रेशन पे हमारे पास असेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जिंक है, आयरन है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, कोबाल्ट, निकल। तो जब वो कंसंट्रेशन जो हमने उनकी देखी थी हर एलिमेंट की, ठीक है, पर केजी ऑफ साइल, तो जब उससे चीजें एक्सीड करेंगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो वो फिर हार्मफुल होंगी। जो आपका नबियोती वाला जो रिव्यू आर्टिकल है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे आपका हैवी मेटल का फोल्डर
ये तो ये वाला रिव्यू जो था आपको स्क्रीन पे विजिबल है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा, ये वाला जो रिव्यू था इसमें ये सारे जो इसके इफेक्ट थे स्पेसिफिक, आफ्टर सोर्सेज हमने 2 लेक्चर दिए थे कि इनके इफेक्ट क्या हैं स्पेसिफिक। तो उनमें आपको इनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं प्लस उनके जो इफेक्ट्स थे, जिंक इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ठीक है, कैल्शियम कैडमियम वगैरह के, वो क्या है, तो उनको आप एक दफ़ा देखें। जी ओके सर। जी जी बच्चों, पासवर्ड जो है जी क्वेश्चन करें मीन वाला। सर जो एक मैकेनिज्म है, हाँ, वो ये है कि चिलेटर्स के जरिए हाँ उनको हैंडल करना हैवी हाँ मेटल को। सेकंड हाँ। वो है कि उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देना। हम्म, थर्ड जो वो है कि एंटीऑक्सीडेंट्स सर ये जो प्रिपेयर करता है। फाइटोचिलेटर्स जो है वो। फाइटोचिलेटर्स यानी अच्छा, सर ये जो ग्लूटाथियान है ये 2 चीजें करता है। एक तो ये करता है ये कि 3 चीजें सोर्स करता है, ये 3 चीजें जो करता है है, फैसल, मैं तुझे 3 चीजें पिन पॉइंट करने लगा। पहला, ग्लूटाथियान जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की स्क्वेंजिंग, खासकर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें ये रोल प्ले करेगा वाया ग्लूटाथियान एस्कॉर्बेट साइकिल, पहली चीज होगी। दूसरा, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाएगा, ये अपने आप को कनेक्ट करेगा हैवी मेटल आयन या मॉलिक्यूल के साथ और उनको फिर वैक्यूल की तरफ लेके जाएगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये पहले फाइटोचिलेटर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, वो इसी से सिंथेसाइज होंगे, ये उनका प्रिकर्सर होगा। ठीक है, जब फाइटोचिलेटर्स सिंथेसाइज हो जाएंगे उन पे फाइटोचिलेटर सिंथेसिस एंजाइम के जरिए, तो वो फिर अगेन मालिक मेटल आयन जो है उनको बाइंड करके वो भी वैक्यूल की तरफ जो है उनको लेके जा सकते हैं। 3 चीजें ये हो जाएंगी। बाकी कल अगर आपको याद हो कि हमने एक जो है आप कह लो कि पिक्चर देखी थी हमने, इल्यूस्ट्रेशन थी, याद है? मैं दिखाऊं? सर वो कौन सी वहां पे वाली? यार कल हमने एक डायग्राम सी देखी थी इल्यूस्ट्रेशन हैवी मेटल की, ये वाली सामने, ये यहाँ पे आपको देखा था सर कि जो आप कह रहे थे ना कि पंपिंग आउट होगी, वो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये जो मेंशन थी ये वहाँ, ठीक है, यानी कि रिजनेशन थी, रिसेप्शन थी और फिर अकॉर्डिंगली उनके आप कह लो कि जो स्क्वेस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो मैकेनिज्म्स हैं वो सारे वहाँ पे इन होंगे। ये इसकी बात कर रहे हैं ये, जो लो मोलेकुलर वेट चिलेटर्स हैं, चिलेटर वो हैं जो उसको बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनमें निकोटिनामाइड था, ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन स्पेसिफिकली ग्लूटाथियान और फिर जो फाइटोचिलेटर्स जो हैं या मेटालोथियान जो चीज़ें थी वो कल के लेक्चर में इन पे हमने जो है वो बात की थी। आज फ्राइडे लेक्चर है, अटेंडेंस 28-27 लोग हैं आज। सर वो जो जी इधर तो हम स्ट्रेस पढ़ रहे हैं ना कि ज्यादा होने की वजह से, तो कम होने की वजह से जो स्ट्रेस वो पढ़ेंगे या नहीं? क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो डेफिशिएंसी अपनी ज़ात के अंदर एक स्ट्रेस है, डेफिशिएंसी भी तो स्ट्रेस है कि नहीं। हमने जब स्ट्रेस को यस सर। डिफाइन किया था हमने तब क्या स्टेटमेंट दी थी, सब सर किसी सब चीज सब का सब ज्यादा या सब ऑप्टिमल लेवल का हमने वर्ड यूज किया था, सब यस ऑप्टिमल सर। में आइदर अबव थ्रेशोल्ड और बिलो जो है उसका ऑप्टिमम लेवल, वो सारी चीजें जो है वो उसमें आएंगी। मैंने पासवर्ड जो है आपको चैट में भेज दिया, इसको देख लीजिएगा, अपनी अटेंडेंस बताएं। अब अदर जो थिंग है, वालेकुम अस्सलाम। सर वो अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद सर मैंने भी सवाल करना है। करें सवाल करें, मेरी होगी लेकिन आपके पीछे ना नॉइज बहुत है यार, अब बहुत ज्यादा नॉइज सर है, ये आप हैंड फ्री यूज करो। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, ये हीटर बंद कर दूं, वो चल रहा है। हीटर गैस वाला तो नहीं चलाया हुआ? सर बिजली वाला। हाँ बिजली वाला सही है, गैस वाला सर उसकी आवाज बड़ी है सर, अब तो नहीं आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही। करें क्वेश्चन करें।
तो यार वो फिर आ रही है, इसको के बंद बारे कर दे, में इसको बंद कर दे, डिस्टर्बेंस काज कर रही है मैं सर यार। इसको बंद कर दो अपने जो आपका बैक पे है, ये हीटर शीटर जो भी चीज है, सर बंद कर दिया, अब तो नहीं आ, अब तो बंद है सब कुछ। अपने फेलो से पूछो, आ रही है अभी भी? सर वो ये 1 मिनट सर फिर अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए। सर वो असाइनमेंट के बारे में पूछना था, अगर आप मुझे टॉपिक अलॉट कर दें तो। असाइनमेंट यार मुझे अभी क्लास से स्टार्ट होने से पहले 2 बंदों ने अपने 3 टॉपिक भेजे थे, मैंने उनमें से उनको असाइन किया है। ठीक है, तो आप भी अपने यार को टॉपिक सर्च किया करो। जी सर, हमने टॉपिक सर्च करने की कोशिश की है सर। अब पहले हाँ, जो असाइनमेंट्स आपने पहले जो दी थी उसके टॉपिक सर्च किए थे, लेकिन इस वाले के हो ही नहीं रहे सर। क्यों नहीं हो रही जी? सर ये अगर आप दे दें तो काइंडली। कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? स्ट्रेस की बात कर रहे हो या इरिगेशन की बात? सर इस ये 515 की सर। ठीक है, मेरे पास एक मैसेज आया, मैं उनको पहले दे दूं। जी 515 की, ठीक है 515 ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, tropospheric ozone causes and effects। जी ठीक है। सर मैंने आपको मैसेज किया था। सर ये सबके लिए या एक बंदे के लिए? भाईजान नहीं नहीं, ये मेरे मैं लिए है। इंडिविजुअल जो असाइनमेंट है मैं लूंगा, ओवरऑल नहीं मैं दे रहा। ओवरऑल मैंने आपको सर वो इरिगेशन स्केजुलिंग जो है राइस वीट उसकी कॉटन वीट सिस्टम की वो मैंने दी हुई है। आपका फैसल किधर है? सर मैसेज किया था मैंने आपको। ठीक है ना। सर वो 503 वाली भी बता दें। हेलो सर। एक मिनट अच्छा सर। फैसल मैं वो चेक कर लो व्हाट्सएप। अच्छा जी, अब 503 की भी मैंने बतानी है भाई, आपने कुछ सर्च करके आए यार, खुद को थोड़ा सा रिव्यू लिटरेचर जो है रिव्यू को सर्च करना सीखो। चले सर, मैं करूंगा, हाँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाँ बता दूंगा। हाँ जी। सर 503 की तो आपने वो सब के लिए बता दी ना, वही जमा करानी है बस, हाँ वही मैंने या करानी उसके है, अलावा नहीं एक और? नहीं 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 वही है, ठीक सर। वो तो मैंने अभी बताई भी है। अच्छा जी, अटेंडेंस जो है उसकी अब क्या सूरत हाल? 2:42। अच्छा जी, टाइम जो है वो शार्ट है। अब जो ग्लूटाथियोन मेडिएटेड जो रिमूवल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है, उसके हवाले से थोड़ी सी जो बात हम करेंगे